दिख नहीं रही. So I'm reading Cheers the कर. Cheers कर. biodata of अनीता जी आ गई हैं. आ गई. प्रेसिडेंट. Welcome NC member PK Sharma ji. नमस्कार साहब. नमस्ते अनीता जी. प्रेजेंट. तो आप स्टार्ट करिए अनीता जी with few words. Sure. Thank you so much. It's really good. It's a regular efforts from the RVP North, Madam Usha Ji Jain. He had been regularly doing all this leadership series, which he had started learning series 3-4 months back, and she's been continuing this. And I'm happy. I'm happy that every time, and today it has become more important when we have our past president, Dr. Yogesh Kumar Upadhyay ji, along with us. And when we are talking about leadership, जो theme आज हमने लेके रखा है, and I welcome on behalf of all the ISTD, I welcome all the eminent members who have joined us across India. Welcome you all. And I'm sure today's session is definitely going to be an enriched one, and this will give a lot of insights, because योगेश जी के माध्यम से हमेशा से ज्ञान की धारा जो वही है, उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप सभी तैयार रहें. And I know it's going to be a great session. And thank you everyone for joining today. And thanks Usha ji for this consistency of organizing all these sessions. Thank you Anita ji for your appreciation. So today's speaker Dr. Yogesh Upadhyay, हमारे लिए तो past national president and a good advisor to many pan India. I'm reading his biodata. Dr. Yogesh Upadhyay is a fellow of 2 reputed Indian institutions, namely Indian Society for Training and Development, ISTD, New Delhi, and Insurance Institute of India, Mumbai. He is also International Fellow of Bangladesh Organization of Learning and Development. Dr. Upadhyay is recipient of Dr. APJ Abdul Kalam Excellence Award 2020 in the area of training and development. Rashtriya Gaurav Purishkar 2016 for his distinguished services. Lifetime Achievement Award in the area of learning and development by International Open University of Sri Lanka, and Lifetime Achievement Award in Human Resource Management by Indo-Global Chamber of Commerce and Industry, Pune. Presently, Dr. Upadhyay is President of Federation of International Trainers and Speakers, FITS, and member of governing body of Asian Network of People. मैडम प्लीज मैं भेज दूंगा लोगों को. Professionals. Previously, he also has a privilege of being National President of Indian Society for Training and Development for 2 consecutive terms, National Chairman of Indo-Global Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, Pune, member of Board of Governor of Management and Entrepreneuring and Professional Skills Council, MEPSC of All India Management, AIMA, All India Management Association and other academic institute. Member of governing body of other committees of various academic institutions, member of Board of American Society for Management Consultants. He holds doctorate degree in organizational management from Savitri Pune University. He is postgraduate in business administration, human resource relations, business laws and economics with NET of UGC. He also has to his credit few prestigious diplomas of training and development, labor laws and labor welfare, and postgraduate diploma of psychological counseling. Dr. Upadhyay is certified black belt in Six Sigma and lead auditor for ISO 9001 to 0115, ISO 1400 2000. He is also certified trainer from Government of India in the area of training of trainers, design and evaluation of training, mentoring, etc. He has more than 3 decades of professional experience in the area of legal affairs, HRM, industrial relations, and training and development in various organizations. He has conducted training programs at national and international level and completed consulting and research assignments. Presently, he is a director of
Utkrishta Management Consultants Private Limited, Pune. Dr. Upadhyay is also associated with academics in visiting faculty for management and law at various constitutes of Symbiosis International University and Savitabhai Phule Pune University and few. Stand-alone institutions. Dr. Upadhyay has also been instrumental in organizing seminar and conference at regional, national, and international level. He has also published few research papers in national and international journals. He is life member of NIPM, ISTD, NHRD, Business Ethics Forum, and other professional institutions. थैंक यू वेरी मच. बहुत मजा आया. इतना बड़ा थैंक यू मैडम. कभी पढ़ा नहीं मैंने. थैंक यू. जब उम्र के साथ तो बायोडाटा बड़ा होता ही जाता है. आई बिलीव सभी का ऐसा ही होगा. तो थैंक यू वेरी मच. ISTD की राष्ट्रीय अध्यक्षा मिस सरिता चौहान, other distinguished participants in the webinar. Actually, I have no knowledge and skills for decoding Gita. People have worked on this Granth for so many years. See, 1800 authentic commentaries are available for Bhagavad Gita. Various people have defined what Lord Krishna has said to Arjuna, and maybe it is a part of Mahabharata, you know, and Usha Madam is regularly conducting program on Mahabharata. See, Mahabharata has 1 lakh slokas, and this has only 700, less than 1%. So, what I have done, I have joined Gita Parivar, led by Shri Shri Param Pujane Govind Giri ji, and there I have been listening some Vivechan by Dr. Ashu Goyal and Sanjay Bhaiya ji, and I could learn. See, what Lord has said means is not important. जो साधन important नहीं. इस पर्टिकुलर जो है ना, जो हम कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, उन्होंने बोला कि साधन इंपॉर्टेंट नहीं. Ultimately, what is happening to us, what is the impact on us, that is most important. Suppose now I am in Pune and I want to go to Delhi, whether I go by walk, by air, by train, or by any means, but I should reach. And what will prove to the reaching Delhi? I should meet Dr. S.P. Verma, who stays in Delhi. That is the lecture. So, what? Because you all know, Lord Krishna has been the first coach. Almighty. Why I say Almighty? Because Arjuna had the best education, best Guru Dronacharya, best technology. That is the Gandhi, the best available technology, and best brain. But he was also frozen in the battlefield when he saw the situation. And there, the Krishna came for his rescue. If you look at the Gita, there are many checklists the Lord has prescribed. Krishna has prescribed. And chapter 12, which is the Bhakti Yoga, the smallest chapter, because उसमें देखेंगे हर चैप्टर का एक उन्होंने सब्जेक्ट दिया है भक्ति योग में, और उसमें वो भक्त के लक्षण बताए गए हैं. चैप्टर 2 में देखेंगे तो उन्होंने एक चेकलिस्ट दी है, स्थिर मत, मतलब आपके जो विवेक है वो ऐसे डावाडोल तो नहीं है, उसकी चेकलिस्ट दी गई है. 12 में भक्ति गण है, 13 में ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं, 14 में गुणातीत, 16 में देवीय और असुरीय शक्ति बताई गई है, मतलब डिवाइन. जो एक मैंने वेबिनार किया था आनंद के लिए, डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सक्सेस, देन आसुरी शक्ति. तो ये चेकलिस्ट, और वो बोलते कि भाई आप पंडित ये नहीं है तिलक लगा लिए, चोटी उपाध्याय नाम लिख दिया. पंडित है जो उनकी चेकलिस्ट पे आई. और जो भक्त लक्षण आप देखेंगे जो उन्होंने बताए, उसको जब मैं आई वाज स्टडिंग, then I said these can be the best competencies for the leader, behavioral competency.
उनमें ये नहीं बोला कि आप इस लक्ष्य, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई उसमें बोला अर्जुन का ये प्रश्न से शुरू होता है ये चैप्टर कि इसको कैसे करना है। तो कई बताए कि ध्यान करो, पहले पहले ध्यान योग, फिर उसके बाद लास्ट में बोला अगर कुछ भी नहीं होता सर्व कर सर्व फल त्यागस, आप सब काम, तो जो आपका उद्देश्य है, जो उद्देश्य उन्होंने भगवान ने बोला मेरी भक्ति करो। भक्ति क्या कि हमारा गोल, सपोज आई एम ए लीडर, आई हैव सर्टेन गोल, अगर मैं अपने पूरे कर्तव्यों को उस गोल के लिए कमिटेड कर दूं, गोल के लिए नौछावर करूं, आई एम श्योर के विल बी एबल टू अचीव दोस गोल्स। सो आई विल गो बाई वन बाई, बिकॉज जो 13वां अध्याय है वहां से वो चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि इसमें इफ 39 आर नॉट कवर्ड, तो आप सबका दोबारा स्वागत है। एक ये मैं अपना, बिकॉज पीपल फ्रॉम पुणे और अदर देयर, आई वाज वर्किंग इन और एआरए, और वहां हमारे ऑडिटोरियम में आनो बद्धा कृतवो यंत विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। So whether it is from the book, whether from our scripture, from person, place or thing, let it, we should be always open to this. So what are available competencies? अभी मैं एक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि यहाँ सभी पंडित लोग हैं, पंडित मीन्स ज्ञानी लोग हैं, वो बता सकते हैं। पर भगवान ने बोला कि आप बेस्ट हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से द लीडर इज जो इन कॉम्पिटेंसीज पर खरा उतरे, और वो कॉम्पिटेंसी आपको कैसे एक्वायर करना है उसके लिए मीन्स नहीं मेन है। तो पहला जो 13वां अध्याय श्लोक है वो ऐसे है, हालांकि संस्कृत में, बट आई एम देयर टू हेल्प। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टा, अद्वेष, द्वेष मीन्स हेट्रेड, अद्वेष मीन्स नॉन हेट्रेड, जो आपके लिए मैंने यहां पे किया है। इसका पहला है अद्वेष्टा, नॉन हेटर, हमको द्वेष रखना ही नहीं है। और द्वेष किससे यहां पे बोला है? सर्वभूता नाम, सर्वभूता नाम मीन्स टू ऑल क्रिएचर्स ऑफ यूनिवर्स। तो मानव एक क्रिएचर है, बट देयर आर क्रीपर्स, देयर आर सांप है, बिच्छू है, गधा है, घोड़ा है, एनिमल है, क्या रेप्टाइल्स है, इवन नदी है, फ्लोरा फ्लोरा, किसी से नहीं रखनी। एंड व्हाट इज द्वेष? यहां पे बोला गया कि आपका राजा साहब विल टेक क्वेश्चन एट द एंड बिकॉज दिस लिटिल बिग, अदरवाइज आफ्टर मे बी लेट मी कवर समथिंग। ठीक है, आपने हाथ उठाया, विल टेक क्वेश्चंस, अदरवाइज यू कैन राइट इन चैट, आई विल सी। बिकॉज अद्वेष्ट, सी वो बोलते कि आप अपनी लाइन बड़ी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम दूसरे की लाइन को छोटा करने लगते हैं वो द्वेष है। दूसरे की हानि में हमें रिजॉइस होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, वो द्वेष है, द्वेष है। किसी को सताने में जो आता है उसमें द्वेष है, सभी को मालूम है। और ये कोई बोले कि मेरे में नहीं है, बिकॉज ऑल ह्यूमन आर बोर्न विद दिस। द्वेष सब में है, पहचानने की जरूरत है। और किसी किसी में तो ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोग सभी समाज में है कि भाई वो आदमी सामने से आता है तो हम पीछे मुंह कर लेते हैं, इधर साइड में कर लेंगे, सीढ़ी से आ रहा है तो साइड में खड़े हो जाएंगे। सभी भूतों से हमें क्या अद्वेष द्वेष नहीं करना है। मैं इसको एक्सप्लेन और भी करूंगा, लेकिन क्या है, बहुत मैत्रिक करुणा, मैत्री मीन्स फ्रेंडली, करुणा मीन्स कंपैशनेट, कंपैशन। अभी फ्रेंड, यू नो, अभी गीता में, वैसे गीता में देखेंगे या भगवान बुद्ध का भी देखेंगे, उन्होंने बोला है कि पाप देरे पुण्य आत्मा से हमें मैत्री करना चाहिए, क्योंकि इसमें दो अगर आप भारतीय दर्शन में देखेंगे तो हमें 4 में बताया है उन्होंने, लेकिन इसमें
भगवान ने बोला है कि, और लॉर्ड कृष्णा ने बोला है कि हमको दो करना है, जैसे करुणा, मैत्री। तो जो पुण्य आत्मा और जो दुखी हैं, दुखिया, उससे हमें मैत्री करना चाहिए, करुणा कर। और करुणा किस पे करना चाहिए? जो दुखी आत्मा है और जो पाप आत्मा है उनके ऊपर करुणा है। फ्रेंडशिप क्या है? व्हाट इज फ्रेंडशिप? कैन एनीबॉडी टेल? फ्रेंडशिप, करुणा। देखिए, करुणा एक होता है दया, हिंदी में है, जिसको हम मर्सी बोलते हैं हिंदी में। कंपैशनेट क्या मतलब क्या है? जैसे अगर हमारे पास, सपोज मेरे पास एक बनाना है इन माय बैग एंड आई सॉ ए पर्सन हु इज हंग्री एंड आई गिव हिम बनाना टू ईट, दैट इज कॉल्ड दया। करुणा क्या है कि व्हेन आई सी ए हंग्री पर्सन, मेरा मन द्रवित हो जाता है और मैं बोलता हूं, ओ गॉड। अगर आप सत्यनारायण की कथा सुनते होंगे कि नारद जी मृत्यु लोक में आए और उन्होंने क्या देखा कि लोग अपने जो लोग हैं वो बहुत दुखी हैं, उनका मन द्रवित हो गया और वो भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उन्होंने बोला, भगवान इनके निवारण का कारण बताइए। करुणा वो है जो कि हमारे संत, साधु संत जो हिमालय में लगे हुए हैं कि इस संसार का दुख नष्ट हो जाए, वो करुणा है। और दया क्या है? कि दया है कि हमने केला दे दिया, उसकी भूख शांति हो गई। लेकिन जब हम उसके लिए काम करते, कैसे भूखा कोई रहे ही नहीं, वो दया। और मैत्री, फेथफुल फ्रेंड पार्टनरिंग को, कि भाई हमारा जो मैत्री क्या है कि हम अपने दोस्तों को बुरे कामों से बचाए। मैत्री के बारे में बहुत सारा है, सुदामा कृष्णा का बहुत कुछ लिखा है, लिखा हुआ है उसमें। तो ये है। तो भगवान बुद्धि, और इसमें गीता में जो दिया गया है उसमें दो में, बट चार है उसमें, चारों के लिए, कि पापी और दुखी आत्माओं के लिए और पुण्य आत्माओं के लिए, इसके लिए अलग अलग वर्ण दिए गए, बट मैं उसमें अभी जाऊंगा नहीं। तो उसमें है, अभी देखिए, संत लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि वो है संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन, बटर को। तो उनका दुखियों को, लोगों के दुख को देख के उनका हृदय मक्खन की तरह पिघलता है। उसको हम करुणा बोलते हैं कि लोग जो है ये है। तो सुखियों और पुण्य आत्माओं से तो हम मैत्री करें और दुखियों पापात्मा पे करुणा का भाव रखें। उनके दुखों को और उनके पापों को मुक्ति कैसे मिले, उसके साधन। अभी इसमें देखिए, लीडरशिप, अद्वेष्टा मीन्स वो भी है। सभी भूतन लीडर्स के जितने फॉलोअर है, नॉन फॉलोअर, सभी से द्वेष नहीं रखने का, मैत्री सभी से, जो जो मैंने बताया उनसे, बिकॉज वी कैन टेक समथिंग। और करुणा के द्वारा हम उनके दुखों का निवारण करें, जो कष्ट है हमारे फॉलोअर को उसका हम निवारण करें। ऐसी करुणा हर एक लीडर में होनी चाहिए। और चौथा जो इसमें आता है, निर्ममो, निरहंकारस, विदाउट माइंडनेस, जिसमें ममत्व का, ये ममत्व क्या है? जिसका हमारी आस्था रहती है किसमें? प्राणियों में और वस्तुओं में, कि भाई ये मेरा है, ये मेरा वस्तु है। इसमें एक छोटे में मैं बताऊंगा कि जैसे एक एक कपल है, ही वेंट टू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बिकॉज दे वांटेड टू बाय ए फ्रिज। दे सॉ द फ्रिज, they went for the color, they considered the size of deep freezer and everything, then they selected one and they said, salesman, we are going to buy this. उसने उसका टैग लगा दिया, नाम लिख दिया वाई के उपाध्याय, और वाई के उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ बैठ गए साइड में उसी बेंच में। he is seeing that fridge is kept there. In the same store, the two worker of the store, they are bringing another fridge, and a fridge is, they thought it is going to dash with their fridge. अभी तक उसने फ्रिज लिया नहीं है, लेकिन उसको अपनत्व हो गया उससे, और वो जाके खड़ा हो, नहीं नहीं नहीं, इससे टच नहीं हो जाए। अरे फ्रिज अभी तुम्हारा बिल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उससे टच नहीं। ये उसमें क्या ममता का भाव आ गया। एंड जो मैं होता है, मैं, मेरे बारे में, मैं इतना पढ़ा, मेरी डॉक्टरेट, मैं ये, वो उसको बोलते हैं अहंकार।
तो इसमें बोला निरअहंकार, निर मीन जिसको अहंकार नहीं है, अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो है अपने ऊपर। सो ममत्व का अभाव मीन्स ये मेरा, उसके लिए क्या सभी फॉलोअर समान है, ऑल आर माइंड एंड आई बिलोंग टू नन, आई बिलोंग टू ऑल, एंड देयर इज नो अहंकार ऑन हिज अचीवमेंट के मेरा पीएचडी हो गया, कि मैं ये हो गया, ये है कर। तो ये इसमें ये भगवान मतलब लॉर्ड कृष्णा ने बोला है कि जिसमें ममत्व का अभाव होना चाहिए। देन उसमें निर्ममम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, सो बैलेंस्ड इन प्लेजर एंड पेन, न ज्यादा खुशी होता, ये 2 बार आया है, हर समय और अभी भी आगे भी आएगा, तो इसमें 2 बार आया बैलेंस इन प्लेजर एंड पेन। प्लेजर एंड पेन क्या है, आप सम और विषम परिस्थितियां बोल सकते, कंडीशंस बोलते, सिचुएशन बोल सकते हैं कि भाई जब उसमें भी बैलेंस्ड है, डजंट लूज हिज कंट्रोल और हर कंट्रोल, ठीक है। एंड आगे का बहुत ही है जिसको फॉर गिविंग, और यहाँ पे हम सब मार खाते, क्षमी जो है ना, फॉर गिविंग, इसे बहुत बड़ा बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है फॉर गिविंग। अभी इसमें क्या, सब क्षमा तो चाहते, भाई मेरे तो एक बार हुआ है, मैं तो पहली बार कर रहा हूं, तो आप क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन वी डोंट वांट टू पार्डन, वी डोंट वांट टू फॉरगिव अदर्स। जब हम क्या करते हैं, हम अपने केस में एडवोकेट बनते हैं। दिस इज स्लाइट मिस्टेक आई हैव मेड, दिस इज फर्स्ट टाइम, बट दिस इज नॉट हार्मिंग समबडी, बट वी आर जज इन अदर्स केस। When it comes to Dr. R.G. Dwivedi, I am a judge. When it comes to Dr. Upadhyay, I am an advocate for Dr. Upadhyay, judge for R.G. Dwivedi. But करना है हमको लीडर का क्या, उल्टा करना है, जज इन हिज ओन केस एंड एडवोकेट फॉर ऑल, दूसरे की गलती को छोटा करके देखे। इसमें एक कहानी है, वो है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, बट आई एम नॉट श्योर, आई कैन से ऑथेंटिकली, कि महाराजा एक बार शिकार पे पहुंचे और शिकार पे जाते जाते एक आम के बाग में रुके, एंड ही इज हिट बाय ए स्टोन, एंड देन उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, उनको पकड़ के ले जाते फर्स्ट एड के लिए, एंड आफ्टर सम टाइम उनके जो सिक्योरिटी मैन है, दे ब्रिंग वन बॉय, बोला महाराज हमने इसको पकड़ लिया, इसको क्षमा, पत्थर आपको इसने मारा है और इसको सजा दो, इसके हाथ, कोई बोला हाथ काट दो, कुछ कर दो, कुछ, पर महाराज से नहीं, लेट मी आस्क, ही कॉल्ड द बॉय प्यार से, भाई क्या, क्यों तुमने मेरे को पत्थर क्यों मारा, मारा भी है कि नहीं मारा? ही सर नहीं मारा। तो बोला कैस क्या कर रहे थे, कि आई वाज प्लकिंग मैंगो, एंड किंग आई डोंट नो कि पत्थर से ही मैंगो तोड़ा। बोला हाउ डू यू, देन उसने बताया कि वी टेक शार्प एंड देन वी एम एट द स्टेम व्हिच इज कनेक्टेड टू, एंड दैट वे वी कनेक्ट। बोला यार ठीक है। Then he became advocate of that boy, बोला इसकी गलती नहीं है, इसको, उसको बोला कि तुम्हें तो आम भी नहीं मिला, ये पकड़ के लिए तुम्हारी गर्दन, बोला हाँ ऐसा ही हो गया, फिर उसको he became advocate of that boy, वो बोला इसको एक टोकरी ये दे दो, इसको आम दो और इनको विदा कर दो इसको। तो हमें क्या करना है, द लीडर शुड ऑलवेज फॉरगिव अदर्स बट नॉट फॉरगिविंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपनी गलती को बड़ा देखे, दूसरी की गलती, हम दूसरे की गलती को बिल्कुल छोटा कर दे, वो क्षमा का भाव है ना, ये इसमें तो इसमें ये। देन अगला जो 14वां श्लोक है उसमें, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। संतुष्ट, संतुष्ट सेटिस्फाइड, सततम मीन्स एवर सेटिस्फाइड, जो मिला है उसमें संतोष करने का, जो पोजीशन मिल गया, जो पराक्रम मिल गया, उसमें संतोष, सब हमेशा सत्य। इसमें यथात्मा है, योगी मीन्स प्रैक्टिशनर है, यथात्मा मीन्स जिसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है, ये सब है, मयि अर्पित मन, इसके सब मैंने एक एक शब्दों को जिससे आपका ये हो सके। एवर कंटेंडेड, अभी हमको फल के हमको फल किस चीज का मिलता है, कोई बता सकता है?
बताइए, आज जो किसी की ये है, ठीक है, इसको बंद करता हूं थोड़ी। आज जो मेरी स्थिति है वो मेरे को क्या भगवान ने ऊपर से दी है कि माता पिता ने दिए, किसे आदमी जो भी अपने बारे को सोचिए आप है, क्योंकि हमारे पिछले कर्म हैं। आई हैव स्टडीड, आई हैव ऑब्टेन्ड मास्टर डिग्री, आई हैव स्टडीड, आई हैव ऑब्टेन्ड। जब मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो कहां से मेरे को डिग्री मिल जाएगी? मैं तो जो भी हमको मिला है वो हमारे कर्मों का फल है, हमारे हार्ड वर्क का फल है, हमारे डेडिकेशन का रिजल्ट। और जिस तरह का डेडिकेशन हमारा है उसका रिजल्ट आया। इसलिए उसमें बोला संतुष्ट सततम योगी। अभी महाभारत में ही यक्ष प्रश्न का ये आता है एक, और उसमें यक्ष जो है ना उनसे पूछते हैं युधिष्ठिर से, कहा दरिद्र, कौन दरिद्र होता है? और उसमें युधिष्ठिर ने ये नहीं बोला कि गरीब दरिद्र होता है, उसने बोला असंतुष्ट दरिद्र है। जो असंतुष्ट है वो ही दरिद्र है। हमें मिल गया, मकान बन गया, चौथे मकान के लिए लोन एप्लीकेशन, एवर एनी एनी इंडस्ट्रियलिस्ट आप फॉर दैट पर्सन, अगर इसकी डेफिनेशन में देना चाहेंगे तो जो मिल गया उसमें संतोष करो, फिर आगे जाओ, फिर संतोष, फिर हमेशा भाग दौड़ नहीं करने का। और ये मैं नहीं कह रहा कि ये गीता में भगवान कृष्ण ने संतोष अर्जुन को कहा है, यथात्मा, सेल्फ कंट्रोल्ड। बहुत से लोग, आज मैंने उसको झाड़ दिया, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, एंड दे थिंक दैट इज द कॉम्पिटेंसी। इट इज नॉट ए कॉम्पिटेंस, गुण नहीं है, यह गुण है। यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ। कंट्रोल का बहुत है, बहुत बड़ा ये है सेल्फ कंट्रोल। कोई ये नहीं है कि हमको कोई अभी बहुत सारे उसमें सीरियल में मैं देखता हूँ कि भाई मैं जब गुस्सा आए तो 3 बार बोल दो कंट्रोल कंट्रोल। वाइफ को ही बहुत से लोग बोल देते ऐसे ही सारे कर देना कंट्रोल, तो मैं कंट्रोल हो जाऊंगा। ये नहीं, सेल्फ कंट्रोल। तो एवर कंटेंटेड में कंटेंट हमारा क्या है, संतुष्ट है कि जो हम करेंगे वो मिलता है, उसमें संतोष करने का सेल्फ कंट्रोल। उसको फर्म कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, फर्म कन्विक्शन, एंड दीज आर because convictions are based on so many things. एक रामचरितमानस में हिमालय के यहाँ पार्वती का जन्म होता है और उनके गुरु होते हैं ऋषिवर नारद। और नारद ने बोला है कि भाई आपका जन्म जो है ना शिव प्राप्ति के लिए हुआ है। एंड उस दिन से पार्वती दृढ़ निश्चय लिया कि आई विल अचीव। उन्होंने तपस्या की। तपस्या में एक एक करके, अगर आपने सुना हो वो प्रसंग, तो एक एक करके सब, इवन दो सी लीव्स ईटिंग ये ना लीव्स पत्ते, इसलिए उनका नाम अपर्णा हो गया था। पर्ण मीन्स पत्ते। और वहां पे सप्तऋषि आते हैं, उनको बोलते कि भाई तुम उसके लिए क्यों कर रहे हो, इज नॉट फिट फॉर यू, उसके पास कपड़े हैं, वो शंकर का बहुत ये करते हैं, विष्णु इज द बेस्ट। बट उन्होंने बोला नहीं, गुरु ने बताया, नारद ने बताया है। और उसमें बहुत बढ़िया प्रसंग है, आप उसको पढ़ाए, दृढ़ निश्चय पे वो है, वो सप्तऋषि से भी टकरी नहीं। बोले, उन्होंने बोले अगर शंकर भगवान भी बोलेंगे तो मैं गुरु के वचनों को नहीं तोड़ूंगी, लेकिन वो सही होना चाहिए गुरु का। क्योंकि नारद जैसा गुरु था, नारद जैसा मेंटर था, जिन्होंने उनको बोला ये करो। तो हमारा गुरु कौन है? वो दृढ़ कंटेंटेड होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, विद फर्म करने, देन डेडिकेटेड माइंड। अब उन्होंने मई अर्पित मनोबुद्धि, अल्टीमेट व्हाट ही से कि आप अपने मन बुद्धि को मेरे मीन्स आई थिंक, मैंने थोड़ा विचार दिया कि मई अर्पित मनो, आपका माइंड एंड इंटेलेक्ट डेडिकेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव, योर गोल, योर एम, विद दिस करेक्ट। तो हमको क्या है कि गोल, जैसे दृढ़ निश्चय के साथ गोल को जाएंगे तो यू विल बी एबल टू अचीव गोल।
डेडिकेटेड माइंड एंड इंटेलिजेंस टू, यहाँ पे बोलते टू गॉड, लेकिन मेरा है कि मैंने ऐसे उसको व्हाट आई फील व्हेन यू कम टू मैनेजमेंट, इट इज टू द गोल एंड ऑब्जेक्टिव. If you take it the goal and objective of welfare of your people, you work on that with conviction. If you want okay organization development, you work on that. Okay, on that type of it. ये बहुत बढ़िया श्लोक है, जो 15वां श्लोक जो उसमें है. यस्मान्नो दुजते लोको लोकानो दुजते चयः हर्षामर्ष भयो द्वेगैः मुक्तो यः सच मे प्रियः. यस्मान्नो दुजते लोको लोकानो, कि मेरे से लोगों को, मतलब लोक मीन्स संसार को उद्वेग नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, मतलब दे आर द वर्ल्ड इज नॉट एजिटेटेड बाय मी एंड आई एम नॉट एजिटेटेड बाय वर्ल्ड. मेरे सामने कोई भी आ जाए मेरे को गुस्सा नहीं आएगा. बहुत से लोग हैं बोलते हैं अरे यार वो तो ठीक है, बोलते ठीक. आई एम गिविंग. We had a disaster in our office, and where the CEO and the CFO has to go. And number 2 became CEO, officiating CEO, and then finally somebody came on deputation, he became CEO, and he started working again. Number 2. हम नंबर 2 को जरा आप बाहर अच्छा करेंगे, वो आपसे बोले वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरे से नहीं चलता है तो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है. तो ऐसे होना चाहिए, मतलब मेरे से लोगों को कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए, लोगों को मेरे से नहीं. अगर उनको होता भी तो आई शुड नॉट बी वरीड. अभी हम शाब्दिक अर्थ यहाँ पे लेके देखेंगे. यस मान दे फॉर हुम, ये देखिए एजिटेट वर्ड एंड ये. तो वर्ड इज नॉट एजिटेटेड फ्रॉम मी एंड आई एम नॉट एजिटेटेड फ्रॉम द वर्ड. मेरे किसी से दुख नहीं होता, किसी के ना मेरे से किसी को दुख हो. हर्ष मर्ष भय द्वेग and free from fear, joy and anxiety. Hers means not rejoice. इसमें rejoice का है, then fear फिर नहीं, anxiety भी नहीं है उसको. So he is free from, कि अगर अच्छा हो गया तो बहुत जाके ये होना या आगे के जाना. See, when our actions are correct, we are contented, we are दृढ़ निश्चयी, वी आर वर्किंग ऑन, हमारा पूरा माइंड एंड इंटेलेक्ट उसमें लगा है, तो ना हमें डरने की जरूरत होगी, ना हम ज्यादा उल्लासित होंगे, ना एंजाइटी होगी, क्योंकि ये एक से एक कनेक्टेड चीज है. तो ना तो उसको रिजॉइस होता है अगर किसी या खुद की कुछ प्राप्ति पे, ना दूसरों की हानि पे, ना दूसरों की. neither he is fearful of people or situation ever, neither he is free from everything. यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया भर्तृहरि नीति में 61st श्लोक है, जो एक बहुत बढ़िया. मृगमीन सज्जनान तृणजल संतोष विहित वृत्तिनाम लब्धक धीवर पशुनाम निष्कर्ण वैरिणी जागति. मीन्स इसमें बोलता है मृग, मीन और सज्जन. मृग मीन्स हिरण, डियर. मीन मीन्स फिश. सज्जन मीन्स जेंटल पर्सन. वो क्रम से किस पे, जल तृण मीन्स ग्रास, जल मीन्स पानी, संतोष. जैसे मृग घास से जीवन चलाता है ना, मीन जल से और सज्जन संतोष से. लेकिन इनको किससे बैर है कि शिकारी को मृग से, मछुआरे को मीन से, और जो दुर्जन लोग हैं उनको सज्जनों से. तो ये तो होना है, बोले ये बोलते हैं, बोले ये प्रारब्ध है, तो इसलिए आपको दुर्जनों से नहीं डरना चाहिए. इसमें वो निष्कारण वैरिनो जागति, जगत में जो है ये निष्कारण ही वैर रखते हैं. मतलब शिकारी हिरण से, जो मछुआरा मछली से, और दुर्जन सज्जनों से निष्कारण वैर करेंगे. तो जब वेन लीडर शुड नॉट फियर फ्रॉम दैट, क्रिटिक से नहीं होना चाहिए, इससे नहीं, निंदक नियर राखी, वो तुलसीदास जी ने भी बोला है. क्योंकि ये बहुत सारी सुभाषिता नहीं पढ़ेंगे तो उसमें लिखा ही है, ऐसा नहीं है. नेक्स्ट श्लोक आता है, अनपेक्ष सुचिर रक्ष उदासीनो गतभ्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. अनपेक्षित, जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता,
सबसे ज्यादा फेलियर वही आदमी रहता है जो खुद पे नहीं लेकिन दूसरों से पे अपेक्षा रखता है। दुखी भी वही रहता है, अगर आप करेंगे दुखी भी वही रहेगा, फेल भी वही होगा। ये इसमें कि जो दूसरे से सुचिर, जो हमारा बोलते हैं पवित्रता, सोच से बना सुचिर, जो मन की इंटरनल एक्सटर्नल बोध। दक्ष मीन्स स्किल्ड, क्लेवर। उदासीन हो, उद प्लस आसीन, जो ऊंचे स्थान पर कर्तव्यता जो कहता है। तो ये चीजें जो एक एक शब्द को अगर आप देखेंगे तो इसमें है फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। अभी इसमें एक और चीज आती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो हमने जो लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा है, जो हम दूसरों को ये करते हैं, जो डेलीगेट करते हैं, तो डेलीगेट में क्या है, हम डेलीगेटी का पहले डेवलपमेंट करते हैं, कि he is able to shoulder that type of responsibility, then we can expect first development, then expectation create होता है उसमें। लेकिन एक्सपेक्टेशन विदाउट डूइंग एनीथिंग अगर रहता है तो लीडर के लिए अच्छा नहीं रहता है। और नेक्स्ट है सुचिर प्योरिटी। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्चुअल, जिसमें मनचा वाचा कर्म, मन से प्योरिटी, वचन से प्योरिटी, उसके कर्मों की भी प्योरिटी। कर्म में जैसे इफ यू टेक 5 जो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ, वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा उसमें। जैसे ह्यूमन डिग्निटी शुड नॉट बी इन्फ्रिंज्ड, ह्यूमन एज ए होल, जो हम आदमी को केवल उसके ह्यूमन एज ए होल का मतलब है WHOLE, पूर्ण मानस। जब हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, we not only hire his hand and skill, we are equally interested in his well-being, his family and society also। अगर आप देखेंगे तो प्योरिटी में उन्होंने बोला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल में, शारीरिक भी है और मनचा वाचा करना, मन की भी प्योरिटी है। दक्ष मीन्स एक्सपर्टाइज, स्किल्स। तो स्किलफुल होना बहुत जरूरी, स्किल्स, राइट सेट ऑफ स्किल्स। और बिकॉज हमने एक टेक्निकल स्किल, तो बिहेवियरल स्किल, बहुत सारी चीजें अगर आप उसमें जाएंगे एक्सपर्ट में, तो प्योरिटी के बारे में एक पूरा एक 4 घंटे का लेक्चर हो सकता है। लेकिन बाद में कभी कभी क्या है कि कभी करूंगा, जैसे एक बार में 3 ले लिए, 3 पे जो एक घंटे का लेना, 30 मिनट एक पे ही बोल सकते हैं। लेकिन इसमें है कि फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन विदाउट डूइंग एनीथिंग, देन प्योरिटी ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट, बॉडी, सोल, एवरीथिंग, एक्सपर्टाइज, earn those expertise, earn those skills to lead their fellow being। उदासीन, अगर आप इसका ये लेंगे, जो अगर आप इसके पर्याय जो सिनोनिम्स बोलते हैं हम उसको, उदासीन को, तो इसका यहाँ पे जो अर्थ है वो ऊंचे आसन पे बैठा हुआ है, और he is not attached to anybody, all are his and he belongs to। so उद प्लस ऊंचा स्थान। अगर पर्यायवाची इसके देखेंगे, तटस्थ भी आता है, इसमें तटस्थ में रहता है पक्षपात रहे, किसी की पक्षपात रहे का मतलब नहीं है, सी जो एक और एक, मैं आई विल नॉट गो इनटू एनी। पक्षपात रहे मींस उसको जो भी उसके सामने जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस, फैक्ट एंड एविडेंस है, उसके साथ ये डिसीजन देने का। डोंट बिलीव टू एनी आइडियोलॉजी, उसके साथ नहीं जाने का। उदासीन का मतलब यहाँ पे। देन सर्वार गतभ्यत है, फ्री फ्रॉम पेन, तो उसको कभी पेन नहीं होता है, विषम और अनुकूल परिस्थितियों में कभी वेतव्यता में व्यथा से, व्यथा जो है ना उसका मतलब फ्री फ्रॉम पेन। एंड सर्वारंभ परित्यागी, रिनाउंसिंग ऑल अंडरटेकिंग्स और कमेंसमेंट्स। तो उसमें ये है कि भी एक हमको अच्छे और बुरे, यहाँ पे भगवान क्या, जो लॉर्ड कृष्ण ने बोला है कि अच्छे और बुरे कर्मों का हमें बाद में जाके त्याग करना है। लेकिन हमको पहले किसका करना है, बुरे कर्मों का, बाद में अच्छे का। जैसे गांव में कभी कभी, अभी मेरे को एक प्रसंग आता था, जब पैदल जाते थे गांव में, कांटा लग जाता था पैर में, तो एक दूसरा बड़ा कांटा लेके
उसको कांटे, पहले लगे हुए कांटे को निकालते थे, या कोई कीला लग गया दूसरे कील से निकाले, सुई चली सुई। तो एक तो बुरा हो गया वो कांटा जो अंदर गया पैर में, लेकिन जो निकाला वो अच्छा है। तो हमको क्या करना है कि भाई जो लगा हुआ है, जो पैर में काटा, उसको तो निकाल के फेंकना ही है, लेकिन जिससे निकाला था हो सकता है आगे फिर लगे, लेकिन उसको भी साथ में रखना नहीं है। ओ थैंक यू सो मच, आपने ये काम, उसको भी बाद में जाके उसका त्याग करना है। इसमें एक और चीज है लीडर के लिए, जो इसमें जो मैसेज है कि ही शुड नॉट कैरी हिज बैगेज एवरीवेयर। आई एम ए लीडर एंड आई एम रिमाइंडर। देखिए एक बार ऐसा हुआ था, बड़ौदा में एक मीटिंग थी, हमारी एनसी मीटिंग, एंड प्रेसिडेंट दैट टाइम डॉक्टर राजस्वी, सी कुड नॉट ज्वाइन। मेरे को प्रिसाइड करना था एज ए वाइस प्रेसिडेंट। उनका जो मंच था, बिकॉज कॉन्फ्रेंस वाज गोइंग, इट वाज बहुत ऊंचा था, और मीटिंग में नीचे लोग एनसी मेंबर, मैंने कहा आई विल नॉट बी एबल टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो जो ऑर्गेनाइजर थे बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ कॉलेज, मैं बोला भाई एक कुर्सी नीचे लगाओ, तो बोले मेज पेज लाने लगे। मैंने मेज नहीं लाने का, उधर ही राउंड ऐसे ओवल शेप में ना, उधर ही बैठ के मीटिंग किया, ऑर्डरली मीटिंग हुआ। तो हमको अपना बैगेज में ये भी है कि वी शुड रिनाउंस ऑल द बैगेज। 17 में बोला यो न रिष्यति न दृष्टि न सुचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। देखिए यहाँ भी जो एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो इसका मैं रेफरेंस जो बता रहा हूँ, यहाँ भी उन्होंने बोला यो मत भक्त समय प्रिय। तो उन्होंने बोला ऐसा भक्त मेरे को प्रिय है, भगवान कृष्ण। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा लीडर फॉलोअर्स को प्रिय होगा, ऐसा पढ़ने का, जब when we read this competencies of leadership। तो इसमें भी हर जगह जो एक 16 से लेके 20 में श्लोक में उन्होंने सब बोला है, ऐसे भक्त मेरे को प्रिय है, भक्त मानने समय प्रिय है, ऐसे लोग मेरे को भक्त मेरे को प्रिय है। जो न रिष्यति, जो खुश नहीं होता, दुखी नहीं होता, और ये व्यथित नहीं होता, न उसकी इच्छा है जो ऐसे करके, जैसे रिजॉइस कि भाई कुछ हो गया, अच्छा हो गया, रिजॉइस। क्योंकि ये देखिए बहुत सारी, अगर आप ये देखेंगे, सैम मानेकशॉ जो फील्ड मार्शल अपने आर्मी के, वो उनका लेक्चर एक बार मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप पढ़िए। लीडरशिप पे अगर देखते हैं, लीडरशिप में ज्यादा खुशी नहीं होता, हेट्स नहीं करता, ये डुप्लीकेशन है उसमें, और ग्रीव्स नहीं, सोचती नहीं, दुखी नहीं होता जब अनुकूल भी पूर्ण परिस्थितियां होती है उसमें। जो जिसकी डिजायर्स है लिमिटेड है, इसकी डिजायर्स नहीं है, अनलिमिटेड डिजायर्स नहीं है, वो सब लीडर्स के लिए उन्होंने बोला है इस पर। और शुभाशुभ प्रत्यागी, और जो अच्छे भले, जो मैं बोल रहा था उनका जो कांटे वाला है, यहाँ पे ज्यादा फिट होता है, गुड और बैड। तो हमको बोलते हैं कि वो के लोग बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना, ऐसे बोलते थे। शुभाशुभ परित्यागी में ये भी बोल देते भाई अच्छे को, गुड का भी बोला भगवान ने, बोला झूठ ही बोलते रहो, बोला गुड एंड इविल दोनों को त्याग, झूठ बोलना सही बात है, अच्छा है, उसको झूठ बोलते रहो, दूसरों का नुकसान, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला पहले इविल को छोड़ो, बाद में गुड का भी त्याग कर सकते हैं, अच्छे उससे अच्छे बेटर गुड को लेके आइए। एंड भक्ति मानने प्रिय, तो उन्होंने बोला मेरा डिवोशन, मेरे में डिवोशन, बट यार फुल ऑफ डिवोशन, एंड फुल ऑफ डिवोशन टू द ऑब्जेक्टिव एंड फॉर द कॉज ऑफ हिज फॉलोअर्स। तो लीडर्स का काम है, लीडर्स होता है फॉलोअर्स के लिए। अगर आपने एक वेबिनार हमने की थी, डॉक्टर मुकेश जैन जी यहाँ पे, हम दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सिंगापुर से एक लेडी आई थी, मैडम, and she was HR person and now running a very wonderful consultancy and member of Parliament of Singapore. And she said, मेरा first Prime Minister ने यही बोला कि I am here for my fulfilling the, and today also one video is going. उसने बोला करप्ट लीडरशिप है तो वो देश कभी भी, उसका अभी का जो प्राइम मिनिस्टर उसका भी एक वीडियो चल रहा है, तो उसमें क्या फुल ऑफ डिवोशन। तो लीडर का क्या काम, फॉर द कॉज ऑफ फॉलोअर, फॉर द वेलफेयर ऑफ फॉलोअर, फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें उसका भक्तिमान मीन्स फुल ऑफ डिवोशन उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है
समशस्त्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। सम हमीस एक समान है मित्रों शत्रुओं से, दोनों से। ये बहुत डिफिकल्ट है। आपने देखा होगा कि उसमें गीता में जब आप पढ़ेंगे या महाभारत में जैसे अभी वो करेंगे, भगवान कृष्ण कभी भी दुर्योधन या युधिष्ठिर से कभी नाराज नहीं, उससे भी इतना उसने उसको दुर्योधन ने ग्वाला वाला क्या बोल दिया, इवन तो अरेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं गुस्सा हुआ। इवन दो आप लास्ट में, महाभारत के लास्ट में कृष्णा गोल टू गांधारी, गांधारी का पूरा परिवार नष्ट हो गया था। गांधारी ने इतना तगड़ा श्राप दिया था लॉर्ड कृष्णा को, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। इससे बड़ा श्राप नहीं, कर्ष नहीं हो सकता। बट स्टिल ही वाज ऑफ सेम, तो वो भी सम दुखे से उसमें आता है। तो इसमें है जो मित्रों से और शत्रुओं से एक जैसा, हु इज द सेम टू फ्रेंड्स एंड फो, फ्रेंड्स एंड फो। ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इसमें दिया हुआ है वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस फॉर ए ह्यूमन बीइंग। अभी इसमें एक चीज में, और फॉर्चुनेटली मुकेश जैन जी हैं, हम दोनों ने इलेक्शन लड़ा था वाइस प्रेसिडेंट का और मैं जीता। जीतने के बाद पहला काम मैंने किया था, मैं इनके ऑफिस में गया था। मैंने, मुकेश जी, वी आर इन द प्रोफेशनल बॉडी एंड वी कैन नॉट डेवलप आवर बॉडी इफ वी हैव दैट टाइप ऑफ। इन्होंने कॉफी पिलाई, नीचे आके घी रोस्टेड डोसा खिलाया, फायदा मेरा ही हुआ। एंड वी आर सो, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि हम प्रोफेशनल, इसमें तो ये होती नहीं, दुश्मनी होती, अदरवाइज ऑल्सो एक जैसा रहेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हमारे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, बट वी ऑल आर हियर फॉर फुलफिलमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। मान अपमान योग, जो कि मान अपमान में भी सेम है, मान अपमान में भी सेम है। जैसे उनको ग्वाला वगैरह बोल दिया था दुर्योधन ने, तब भी वो ये नहीं, उसको कुछ गाली नहीं दिया और विदुर के जाके खाना खाया। तो इसमें क्या है, मित्र और शत्रु से एक सा, मान अपमान में एक सा रहना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा अटल बिहारी वाजपेयी का अगर आप लेंगे, पार्लियामेंट में ही लॉस्ट हिज गवर्नमेंट बाई 1 वोट एंड उन्होंने बोला हम दोबारा आएंगे। इवन तो महाराष्ट्र का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोला मैं समुद्र को वापस आऊंगा। अब शब्द नहीं बोले और ही के अगेन। तो लीडर जो कमिटेड है वो आएंगे। और शीतोष्ण दुखे से, सेम इन कोल्ड हीट, पेन एंड जॉय। अभी इसमें एक ये बॉडी का दिया है कि अगर बॉडी कुछ है या इंटेलेक्चुअल है जिसमें जॉय या पेन होता है, तो उसमें एक साइड, ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली ऐसे प्रैक्टिस करना। है संग फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट, संग विवर्जित है, फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट। जो भी है उसको कुछ खोने का भी डर नहीं रहता, कुछ खोने का। तो एक सा रहना मीन्स मित्रों और शत्रुओं से, मान अपमान में, और अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में, और उसको कुछ खोने का डर नहीं हो। ये लीडर की क्वालिटी उसमें बताई गई है। इसमें एक हालांकि इसमें 3 स्टैंजा है, बट ये कविता यहाँ पे बहुत, आई डोंट नो किसकी कविता है, तो वो अगर इसको पढ़ेंगे, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे, कांटे चुभ जाए कोई, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान है, अरे इस धरती का भगवान है। वो जो श्लोक इस हिंदी में है कि मान और सम्मान में, चाहे कोई सत्कार करे या कोई हमें दुख दे, काटे तो चुभाए, तो हमें सम रहना है। ये ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, ये उसका इशू नहीं बनाने का। 90 लास्ट वन, तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतस्तिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः।
तो इसमें जो बहुत बड़ी बात कही है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौन, तुल्य, सेंसर एंड प्रेज आर इक्वल। जब उसकी निंदा, इवन तुलसीदास ने निंदा की है, चाहे उसका बढ़ाई हो चाहे उसकी निंदा हो, ही डजंट रिएक्ट, एक सा रहता है, बोथ आर इक्वल। इवन दो निंदा करने वालों को, क्योंकि मैनेजमेंट में पढ़ाते जो डेवलपमेंट होता है हमारा निंदा से ही होता है, तो उसको तो थैंकफुल रहना चाहिए, निंदक नहीं राखिए, उन्होंने भी बोला है से संतुष्ट, वहां भी आया कंटेंटेड इसमें, ये विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग, यहाँ पे दूसरे उसमें है कंटेंटेड विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग, और स्थिर मत। अब ये जो लक्षण है वो कभी आते हैं, मैंने वर्मा जी को देख लिया आ गए, लेकिन किसी और को देखे गल, तो वो लीडर नहीं है। स्थिर मतलब स्टडी, परमानेंट नेचर होना चाहिए। यहाँ पे बोला आज भक्ति कल नहीं, आज भगवान की भक्ति है, कल गाली दे रहे भगवान को नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, स्थिर मतलब ये हमेशा परमानेंट गुण होने चाहिए हमारे, ऐसे आगे गए नहीं, सिचुएशन के हिसाब से नहीं, आदमी के हिसाब से नहीं, इट शुड बी परमानेंट इसमें। एंड लास्ट में जो लास्ट श्लोक है, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। धर्म, ये तो धर्मामृत मतलब यही हमारे लिए इमोर्टल धर्मा है। ये जो बताया गया है इसको प्रैक्टिस करना, यही इमोर्टल धर्मा है। हमको गुस्सा नहीं होना, नाराज नहीं होना, अटैचमेंट लेके नहीं चलना, लगे लेके नहीं चलना, और एज डिक्लेयर्ड एबव, जो ऊपर कहा गया है वही धर्मा है। और इस धर्म को जो प्रैक्टिस करेगा, जो परिपास में द पर्सन हु फॉलो दिस, वो हमेशा एंडोर्ड विद फेथ, वो हमेशा मुझे प्राप्त होंगे, मीन्स वो हमेशा सफलता को प्राप्त होंगे। ऐसे करके भगवान ने इसमें 39 बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी दिया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर सभी 39 हो सकता है 10 हो, 5 हो, एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक भी नहीं हो, है ना, एक दो तो होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम जाके ऐसे स्पिनिंग व्हील में करें कि भैया कौन सी पहली हमारे लिए ठीक है, दूसरी ठीक है, ऐसे रुक के मतलब भाई ऐसे नहीं। व्हाट इज आवर रोल इन सोसाइटी? उदासीन कितने हम उच्च आसन पे बैठे हैं, उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि हमारे पास सभी होनी चाहिए, इसमें से कुछ होना चाहिए। सभी होती है तो अच्छी है। अब इसमें जो 1 से 2 12 तक श्लोक थे, उसमें भगवान ने ये बोला कि ये जरूरी नहीं आप इनको कैसे प्राप्त करें, मेन है कि इसकी प्राप्ति आपको हो, कैसे भी करो ना। 4-5 बातें वही वो बहुत दर्शन वाली, फिलोसफी वाली बात है, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि उन्होंने बोला ध्यान से ये सत्य, ये से इससे वो, एक्चुअली वो उसमें प्रायोरिटी में नहीं है। उन्होंने बोला आप उसमें से कुछ भी करो। और सबसे बड़ा, सबसे जो लास्ट में उन्होंने बोला कि अगर आप अपने सभी कर्मों का फल जो है, अपने मतलब आप सभी कर्मों का जो ये है अपने उद्देश्य में लगाइए, तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। एक किताब जो मेरे बहुत मन को अच्छी लगती है, वो है गीता परमल की ग्रेट बिजनेस महाराजा, जो उन्होंने लिखी थी अपने पीएचडी के लिए, और उसमें एक क्वालिटी बताई थी लीडर्स की। ये तो सक्सेस फैक्टर उन्होंने, और उसमें एक दो लास्ट के, वो बाकी जो इनहेरेंट क्वालिटी सब में है, इट इज अ बॉर्न क्वालिटी, हम लोग उसको अपना डेवलप नहीं करते, इसलिए इट इज सब में है। हाईली फोकस, हम फोकस रख सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस कहीं दूसरा रहे। हमारा फोकस है दूसरों की लाइन छोटी करने में, अपनी लाइन छोटी बड़ी करने में नहीं है। अब सबके पास एनर्जी है, पर हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है दूसरी जगह। द ट्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स जो लीडर्स को चाहिए ये डेवलप करने के लिए, जो मैं बताया पार्वती वाला, बिकॉज उनके गुरु नारद थे, ध्रुव के गुरु नारद थे। यहाँ पे मेंटर टू किक देम स्पिरिट, ऑल दीज हैव गुड मेंटर्स, and mentors kick them upstairs. The mentors has injected them to next orbit of their personal goal. And lastly, luck. और लक आता है सत्यम शिवम सुंदरम,
सत्यम वद, सुंदरम मीन्स उसको, सत्यम शिवम सुंदरम मूवी नहीं है जिसमें जीना तमान हमारे कुछ है या लोग उसको ध्यान आएगा। सत्य शिवम मीन्स शो, सुंदरम मीन्स आप उसका, अगर आप ये हैं। एक चीज और इसमें है, इसमें जो बोली है कि अगर आपके अंदर कुछ गुण है तो बताइए लोगों को, आप बताने से मत चूकिए। अच्छाई को, अपनी अच्छाई को अपने आप भी हाईलाइट करना चाहिए। तो ये जो कॉम्पिटेंसी विल टेक समटाइम्स, क्योंकि ये तो 39 चीजों को कलेक्ट, मतलब 1 घंटे में क्या 40 मिनट का ही टाइम दिया था, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ये गागर में सागर भरने के बराबर हो गया है। तो इसमें लक का भी है कि हाउ यू कैन ब्रिंग लक टू यू, नॉट बाई सम ओझा जी किसी का नाम, नॉट बाई पंडित, और ये you can bring by your actions. Choose one good mentor who will develop these qualities and make you successful. Thank you very much. आप सब लोग आए, बड़े ध्यान से सुना। अभी आपके जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आई विल स्टॉप शेयर एंड क्वेश्चन मैडम किसी ने चैट में है तो आप मेरे बताइए। मैं बिकॉज वैसे मेरा ये नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है कि इसको मैं कहूं मेरे से ज्यादा पंडित हो सकते हैं इसमें, क्योंकि मेरे से ज्यादा भी विद्वान हो सकते हैं। अगर मेरे से गलती हो तो आई थिंक माफ करेंगे, बट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट जो भक्त के लक्षण बताए भगवान ने, उस कैसे हम अपना बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज में कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट में डिवाइन क्वालिटीज ऑफ पीपल फॉर सक्सेस उसको लेंगे, तो या इनको ही किसी 3-4 को लेके उसको डेवलप करेंगे। तो मेरा तो धन्यवाद उषा जी को जो आरबीपी है नॉर्थ की, उन्होंने आज मौका दिया। तो मैं एक्चुअली अनीता जी को भी बोला था, इन्होंने बहुत अच्छा ये प्रकल्प चला। कई सेशन गीता के हुए थे कोटा चैप्टर के इसमें इसके वेबिनार में काफी, और उसमें ये एक स्पेसिफिक टॉपिक मैंने देखा कि ऐसे हो सकता है। जब मैं गीता परिवार के विवेचन सुनता था तो वो तो भक्ति के लक्षण में, बट ये दीज कॉम्पिटेंसीज कैन बी डेवलप्ड, बट डिफिकल्ट, देयर आर सम आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू, क्योंकि हम सुपर मानव नहीं है, हम लोग सब मृत्यु लोक के वासी हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उपाध्याय जी, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन किया आपने। वो लक्षणों को जो आपने मैनेजमेंट से लिंक किया, ये अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा है। ये आप ही कर सकते हैं, सबके बस की बात नहीं। थैंक यू सर। एक प्रयास राम जी ने हैंड रेज किया और मैसेजेस में कुछ नहीं आए, और जो क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज रेज द हैंड। दिवाकर जी। हाँ, हेलो योगेश जी। हाँ जी सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ऑन चैप्टर 12। यस सर। बट देयर आर टोटल 18 चैप्टर्स। हाँ। बट व्हेन विल यू गिव द डिस्कोर्स ऑन अदर चैप्टर्स? सर मेरा प्रयास जारी है। आप देखिए, मैंने एक अभी मैं 16वें चैप्टर पे एक और लिस्ट है, वहां पे 2 लिस्ट दी है, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां। तो दैवी पे पहले करें, आसुरी पे तो नहीं करूंगा मैं। आसुरी से दूर रहना चाहिए, पर वो भी करेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उसके लिए वो करेंगे जरूर। इसको आगे लेके गए जी, आपने जो प्रश्न, आप दिवाकर जी जो आपका कहना है कि कब होगा, तो ये डेफिनेटली हमने पहले भी गीता के ऊपर हमने जो इवन सर्टिफिकेशन सेशन चलाया था, so we can think about it and we will do when Usha ji has taken a lead already. So let us start this and we'll have 18 सेशंस, 18 चैप्टर्स के 18 सेशंस के साथ। नहीं, डॉक्टर अनुवा ने भी एक बहुत अच्छा, वो काफी ज्ञानी थे, मैं वो उनका सेशन अटेंड किया था, उन्होंने भी अच्छा। ये नहीं है जो मैं बोला, लेट द नोबल आइडियाज फ्लो फ्रॉम एनी डायरेक्शन। आपको, हमको तो ये अपने ईयर्स एंड आईज ओपन रखना है कि कहाँ से आता है। इसमें भी फ्रॉम गीता, भागवत और किसी भी कथा, सुभाष तानी, कहीं से भी, कुरान, बाइबल, जो भी करना चाहता है, वी एज ए ट्रेनर वी शुड बी रेडी टू ग्रैब इट। एंड योगेश जी। जी सर। I want to congratulate you because when you were talking, I had opened my book of Gita and looking in there, all the Devanagari script was exactly correct. सर मेरे पास तो ये माचिस के साइज की भी गीता है, और हमेशा पॉकेट गीता में जब भी जाता हूँ
ट्रेन में भी। तो ये सर क्या है, बहुत लोगों ने इस पर रिसर्च किया। मैं बोला 1800 डॉक्यूमेंटेड कमेंट्री है और 1800 लोगों के विचार हैं। जैसे अभी ये भक्त लक्षण बताए, उसको मैंने इसमें किया, वो तो उन्होंने जो की तो किया, जो मैनेजमेंट वो ये क्या है, ये एक प्रयास है। अगर हम करेंगे इसको, एक जो अद्वेष्टा सर्वभूता, अद्वेष्टा पे ही कम से कम एक चैप्टर है अगर आप जाएंगे तो, और उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे करुणा है, करुणा में सबरी की कथा है, सबरी, क्योंकि सबरी सबको मालूम है, उसको एक भेड़ के बच्चे से प्यार था, किसी ने बोल दिया ये तो तेरी शादी में कटेगा, वो भाग रही वहां से, बोले मेरे को ऐसी शादी करने से क्या कि जिसमें मैं जो सबसे प्रिय मेरा साथी है मेमना, उसकी जान चली जाए। ये करुणा है, जीव हत्या ना हो, ये करुणा है। तो कहानी, अगर मैं कहानी सुनाना चाहता तो ये तो 3-4 दिन, अभी मैं अपने गांव में 3-4 दिन लगा के भी है, 3 चैप्टर 3 दिन में, मैं 4 दिन में किए मैंने। तो ऐसे तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी सर। दिस इज वीके शर्मा, वीके शर्मा बोल रहा हूँ मैं नोएडा से। बोलिए सर, शर्मा सर। सर मैं आपसे 2 चीजें जानना चाह रहा हूँ जी। कि आपने जितनी व्याख्या अभी गीता में की, ये सब चेतन मन की और चेतन मन कुल हमारा 10% तक काम करता है, 9% तक काम करता है, 90% अवचेतन मन काम करता है। और गीता वास्तव में अवचेतन मन को, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एनलाइटन करती है। करेक्ट। तो उसको किस तरह एनलाइटन करने के लिए जगाया जाए, वो उदाहरण दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर मैं अगला जो 1 से 12 अध्याय है ना, वो इसी पे है। उसमें मैं ये लिया नहीं क्योंकि वो काफी क्योंकि उन्होंने भगवान जो मैं बताया पहले कि इसमें साधन जो जरूरी नहीं है, हम पर घटता क्या है वो जरूरी है। उसमें अभ्यास समझते सु, और अभ्यास करने से, क्योंकि इंद्री जो हमारी इंद्रियां हैं, जो उनका भोजन क्या है, आंखों का भोजन है अच्छी चीजें देखना, कानों का ये सुनना, तो अभ्यास से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसमें ये दिया हुआ है सर 1 से 12 में। नेक्स्ट टाइम हम उसको वो है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग इस पे कमेंट्री पढ़ते हैं, जितने भी लोग कमेंट्री करते हैं, वो हम केवल 9% 10% के चेतन मन की बात करते हैं, और अवचेतन मन को जगा करके उसमें इन चीजों को फोकस किया जाए, वो आइडिया डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। गीता का वो तब हल होगा। देखिए अभी जो हम एक मिनट मुझे कहने दीजिए, अगर गीता पर बात कर रहे हैं, वो गीता केवल सुपरफिशियल रह जाती है, और इसीलिए गीता पर कमेंट्री हर किसी की पढ़ने से आदमी कंफ्यूज ज्यादा होता है। सही बात है। इसीलिए मैंने जो कही थी ये बात कि हमारा तो कोई ये औकात ही नहीं है, क्योंकि इसमें और भी जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, जो एक लीडिंग ट्रेनर है, ही वाज इन वृंदावन, और गीता पे उन्होंने, अगर उनके खुद के वीडियोज वगैरह हैं कि गीता पे 3-4 महीने रह के वहां पे सीखा, क्योंकि इसके जो 1800 जो कमेंट्री है उसमें डिफरेंट मीनिंग है, तो इसको डिकोड करना इतना इजी नहीं। बट अब मैंने उसमें भी मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो निवृत्ति मार्ग के लोग हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग के लोगों को गीता नहीं पढ़ा सकते। करेक्ट, सही बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो निवृत्ति मार्ग के लोग हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग के लोगों को गीता पढ़ाने का प्रयास करते हैं, सब कंफ्यूजन कर देते हैं। सर मैं तो मार्ग के लोग हैं, उनको सबकॉन्शियस माइंड में जाके ही गीता समझ में आ सकती है। हम तो जो आपने जो अपना किया है उसको शेयर कीजिए। रियली वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि इसको शेयर करने से और भी ज्यादा आनंद आएगा। अगर 2-3 लोग करेंगे एक साथ तो और भी अच्छा, क्योंकि ये एक अथाह भंडार है जिसको आपने सही बोला, 5-6% ही टैप कर पाते, वेरी डिफिकल्ट। ये जो कहा, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ तक सच है, जो स्टीफन कोबी की बुक है, या इन लोगों ने पढ़ा है। 7 हैबिट्स स्टीफन कोबी गीता से ही लिखी गई है। गीता से लिखी गई, दैट इज ट्रू, और देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बस तो ये, लेकिन हम लोग इससे अछूते रहे तो वो नहीं रहना चाहिए। जो भी कर सकता है आई थिंक तो उससे करना चाहिए। जो लिस्ट दी गई है, जैसे चैप्टर 2 में, चैप्टर 12 में, चैप्टर 14 में है, 16 में, इन लिस्टों को कैसे आप डिफरेंटली एप्लीकेबल बना सकते हो लोगों के लिए, वो बहुत ही बड़ा एक योगदान रहेगा।
उसके लिए योगदान के लिए जो मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ काम करता रहता हूँ, वो हम गीता की व्याख्या यथार्थ में करें, भक्ति भाव को छोड़ करके। करेक्ट। हाउ गीता कैन हेल्प एज ए पर्सन एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर सोशोलॉजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट फॉर ए बेटर पर्सन। नहीं, वही कर रहा था मैं, लेकिन यथार्थ बताना बहुत जरूरी कि भगवान ने किस परिप्रेक्ष्य में किया और हम कहाँ यूज कर रहे हैं, वो भी एक जरूरी है। लेकिन नहीं, उसमें एक गलती जो हम कर लेते हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब गीता लिखी गई तब का परिप्रेक्ष्य आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारा अंतर है। यस सर। आज हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, हम कोई किसी से कहे कि तुम इंटेलेक्चुअल नहीं हो, सुनेगा नहीं। एवरीबॉडी थिंक्स आई एम अ हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। और जबकि गीता पढ़ी जाएगी स्पिरिचुअलिटी से, हाँ, इंटेलेक्ट की जरूरत ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि उसका ये मैंने एक वही कोट किया था कि भगवान कृष्ण को कितना उल्टा सीधा किया दुर्योधन ने, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया। He was not an ordinary person. That is why he called the God, ना? चलिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट है नरेंद्र जी वगैरह के, अच्छे अच्छे, धन्यवाद जो है। तो नेक्स्ट टाइम वीके शर्मा सर आपसे जरूर करेंगे, एक कांटेक्ट करते हैं, हमारा ग्रुप है तो करेंगे और अच्छे प्रोग्राम करेंगे, 2 वक्ता रहेंगे तो और भी लेटेस्ट। एक अनीता जी ने तो किया है कोटा में, आई हैव अटेंडेड आल्सो, तो I am always ready for such kind of activities. Don't worry. थैंक यू सर। Thank you, sir. उषा मैडम, एक स्पीकर आपको मिल गए है ना, कभी कभी हम दोनों करेंगे आधा आधा। तो थैंक यू उषा जी, अच्छा आपने एक प्रयास किया लोगों को इस मंच पर लाने का, और एक डिफरेंट फ्लेवर है, बाकी तो पढ़ते रहते हैं। तो रामायण में भी है, रामायण में ऐसी एक लिस्ट भगवान राम ने ये अयोध्या कांड में दिया, तो अगली बार उसको लेंगे। नहीं, आपकी जो भी गीता का ज्ञान से उसको कंपेयर करते हुए डे टू डे लाइफ की, खाली गीता ज्ञान तो अलग है, सभी पढ़ते ही है, करते भी है, उसको करा जो कि क्वालिटीज हम लोगों को इनबिल्ट करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मुझे भी, सबको, सब में कमियां होती है, सबको करना चाहिए, ताकि जो है कम से कम सब जगह सही रिलेशंस चले, सब जगह कॉर्डियल चले, एवरीथिंग इन हाउस, एट अपोजिट हाउस, किसी के ऑफिस, अपने ऑफिस में भी, संस्था में भी, कहीं पे भी हो। दिस इज ऑल आपने बहुत प्रैक्टिकल बताया, और एक एक चीज उसके साथ जोड़ते हुए आपने कैरेक्टर, भगवत गीता का कैरेक्टर को जोड़ते हुए इंसान को कैसे रहना है वो सिखाया। बहुत अच्छा सेशन है उपाध्याय जी, आपके बहुत तारीफ मिल रहा है, बहुत अच्छा सेशन है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द एस्टीम्ड आईएसटीडी मेंबर्स। जो भी है आईएसटीडी, नॉन आईएसटीडी मेंबर्स भी है इसमें, आईएसटीडी मेंबर्स भी है इसमें, भी है नॉन आईएसटीडी है, नई पीएम भी है, काफी मेंबर्स, कुछ तो काफी लेफ्ट भी हो गए शायद। लेफ्ट होने के बाद देखा मैंने पीएनपी डॉक्टर आरपी सिंह जी को, मैंने पहले नहीं देखा, लेफ्ट, बट वेलकम आरपी सिंह जी। आए थे क्या? मैंने भी देख नहीं पाया। हाँ, वो लेफ्ट आ रहा था तब देखा, वैसे मैंने पूरा चेक कर लिया था, वो शायद हल्का लेट आया, फिर तुरंत भी लेफ्ट हो गया लगता है। सर सेशन बहुत बढ़िया था आपका, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सर, आप आए इसलिए बाहर आई। नहीं सर, आपने बुलाया इसलिए तो आप सब अटेंड करेंगे जितने सेशन होंगे आपके। इसमें आप देखिए फंडामेंटल कंसेप्ट वो भी अगर आप नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, जो मैंने कई बार पढ़ाया एमबीए स्टूडेंट्स को, तो वो भी उससे रिलेट होता है बिल्कुल। बिहेवियर इज कॉज्ड, नोबडी इज बॉर्न मिलिटेंट। तो अच्छा लगा। आज मेरा ये दूसरा सेशन था, सुबह से थोड़ा ये था लगा। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत लोग अच्छा लगा लोगों से मिलके। यहाँ पे मिलना मुश्किल होता है, इवन कोरोना के बाद भी लोग नहीं मिल पाते, पर वर्चुअली मुश्किल होता है, और एक हो रहा है अच्छा, फेमस स्पीकर को भी एक ऑडियंस मिलता है, तो और भी अच्छा हो जाता है, सेशन का भी और स्पीकर खुद का भी। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नहीं, मैं एक उसमें दिल्ली चैप्टर के उसमें गया था, बहुत अच्छे, बहुत ही ज्ञानी ये थे, डॉक्टर निवा लेके आई थी, और भी मेंबर थे दिल्ली चैप्टर के। तो मैंने तो आनंद के लिए भी किया था ये, तो मैंने उनको भी बोला था आई विल डू वन। बाकी जब आपने बोला तो मैंने कि लेट मी कंटिन्यू द सेम चेन। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर गुरविंदर जी आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर।